بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے 2-2.5 ماہ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ فتویٰ وقوع کذب امکان کذب جناب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اس بارے میں چل رہا ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ میں ہے، اور یہ ویڈیو جواب ہے جناب خائن مکار ماں کی کمائی کھانے والے پھکڑ باز کذاب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ٹیڈی بکری کی ویڈیو کا۔ سامعین و ناظرین، یہ القابات کوڈو ٹیڈی بکری کو فقیر کی جانب سے نہیں ملے، بلکہ اس ٹیڈی بکری کو اس ٹیڈی بکری کے مذہب کے دھرم کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی جانب سے عطا کیے گئے۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ٹیڈی بکری کی ایک ویڈیو جو تقریباً 30-31 منٹ پر مشتمل ہے، اور آخر میں ٹیڈی بکری نے 5-7 منٹ اپنی پچھلی ویڈیو کے لگائے۔ یوں اس ٹیڈی بکری کی یہ ویڈیو 36-37 منٹ پر مشتمل ہے، اور یہ ویڈیو پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے جواب میں اس ٹیڈی بکری نے ریکارڈ کروائی ہے۔ سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتلاتا چلوں، یہ سلسلہ کوڈو ٹیڈی بکری نے خود شروع کیا تھا، فتویٰ وقوع کذب امکان کذب، جس کا یہ ٹیڈی بکری اقرار بھی کرتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے اس ٹیڈی بکری نے یہ قضیہ یہ معاملہ چھیڑا تھا، تب سے فقیر اس کے تعاقب میں ہے۔ یہ ٹیڈی بکری ایک معاملہ چھیڑتی ہے، جب ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں اور اس کی دم پر لتر لگاتے ہیں تو یہ ٹیڈی بکری اس معاملہ کو چھوڑ کے بغیر حل کیے دوسرے معاملہ کی جانب بھاگ پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جو اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں پھر انہوں نے تعاقب تو کرنا ہوتا ہے۔ ہم تو حاضر ہیں، جس مسئلے کو یہ چھیڑے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے، ہم اس کی دم پر پاؤں نہیں رکھیں گے بلکہ لتر لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے 2-2.5 ماہ سے یہ شروع کیا ہوا مسئلہ اس نے چھوڑ دیا، دوسرے مسئلہ کی جانب بھاگ پڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی جو دوسرا چھیڑا ہوا مسئلہ تھا تحریک پاکستان، اس ٹیڈی بکری کی ایک ویڈیو صرف ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مزید بھی ویڈیوز آئیں گی تحریک پاکستان کے حوالہ سے، آزادی ہند اس حوالہ سے۔ فقیر نے اس کا آپریشن کیا اور اسے یہ کہا تھا، اسے تنبیہ کی تھی کہ خبردار اس عنوان کا انتخاب نہ کرنا، اس میں اتنے حوالہ جات ہیں کہ یہ ٹیڈی بکری ان حوالہ جات کی زد میں آ جائے گی اور کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ یہ کوڈو مزید کوڈو ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 دن گزر گئے، اس کی جانب سے کوئی اور ویڈیو نہیں آئی۔ انشاءاللہ العزیز فقیر انتظار میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں آئے، اور میں پھر دیکھتا ہوں کہ اس ٹیڈی بکری کو کان سے فقیر کیسے پکڑ کے گھسیٹتا ہے۔ تو یہ اس معاملہ کی جانب بھاگ پڑا، اور فقیر پھر متوجہ ہو گیا۔ مولوی الیاس گھمن صاحب کا جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اس جانب، تو اس نے یہ سوچا کہ اب میدان خالی ہے، اس نے پھر وہی حرکت کی اور فتویٰ وقوع کذب، وہ کہتے ہیں نا جتوں دی کھوتی اتھے ان کھلوتی۔ ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ یار اس مسئلے کو تو پہلے حل کر لیں۔ ہم نے اسے دعوت توبہ بھی پیش کی تھی اور اس کے سامنے 10 سوالات بھی رکھے کہ اس کے جوابات دو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس قضیہ میں، اس مسئلہ میں، اس معاملہ میں اس کوڈو ٹیڈی بکری کے 10 جھوٹ اس کے سامنے رکھے، یا اپنے ان جھوٹوں کو ثابت کرو، یا
देवबंदियत पे 4 हर्फ भेजकर सुन्नियत को कबूल कर लो। हिदायत देना ये मेरे अल्लाह का काम है, हमने इसे दावत तौबा पेश की। खैर, कोडू साहब की जो वीडियो हमारे सामने आई है, ताज़ा वीडियो, जो पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी के जवाब में इसने रिकॉर्ड कराई है, ये शाह साहब को कह रहा था कि वही पुरानी बात शाह साहब ने अपने एक बयान में की है। हमने जब इसकी वीडियो सुनी, हम मुंतज़िर थे कि शायद कोई वो जो कोडू साहब कहते हैं मेरे पास एक अभी जहां बाकी है। ये जो मैं 10 मिनट का 20 सेकंड का चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा। इनमें से भी तो मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की, चंद बातें मैंने दिफाए अहले सुन्नत में पेश की, भी तो पूरे एक जहां बाकी है। हम इंतजार में थे कि शायद कोडू टेडी बकरी ने उस जहां से कोई बात, कोई खजाना लोगों के सामने, देवबंदियों के सामने पेश किया हो। आप हैरान होंगे कि जब हमने इसकी वीडियो को सुना तो 30 मिनट के अंदर कोई एक बात भी इसने नई नहीं की। वही चैलेंज बाजियां, जी मेरा 10 मिनट का चैलेंज, आप 2-2.5 घंटे मुनाजरा नहीं कर सकते, चले आप छोड़ें, 2-2.5 घंटे मुनाजरा करना आपके बस का काम नहीं है, ये 10 मिनट का चैलेंज है, चलें 10 मिनट को भी आप छोड़ें, 2 मिनट का मेरा चैलेंज है, फुला फुला। फर्क ये है कि पहले ये टेडी बकरी चैलेंज अपनी वीडियो की इब्तिदा में करती रही है, इस वीडियो के अंदर इसने ये चैलेंज आखिर में जाके किया। वही बातें, वही इसके जुमले, वही चैलेंज बाजियां, वही अल्फाज। फर्क यह है कि पहले देवबंदियों को इसने चूना लगाया, बेवकूफ बनाया, ये चैलेंज बाजी इसकी पहले हुआ करती थी। इस वीडियो के अंदर इसकी चैलेंज बाजी आखिर में चली गई है। बाकी बातें जो इसने हवाला जात पेश किए वही झूठ फरेब पर मबनी, जिसके जवाबात फकीर एक वीडियो में नहीं 4-5 वीडियोस के अंदर दे चुका है। बात वहीं आ जाती है कि जब तक जवाब के साथ 2-4 जनाब की तवाज़ो में बातें ना की जाएं, कोई जुमले ना इस्तेमाल किए जाएं, तो जनाब को समझ नहीं आती। वही बातें इसने की हैं जिनके जवाबात फकीर मुतअद्दिद वीडियोस में दे चुका है। ये जरा फकीर जनाब के जो एतराज़ात हैं, जो अल्फाज हैं जनाब ने गुफ्तगू की है, वो जरा आप समात फरमाएं और साथ साथ जवाब भी आप समात फरमाते जाएं। कोडू साहब कहते हैं कि हमने हुसामुल हरमैन से चंद सत्रों को पकड़ा। इसने चंद सत्रों को पकड़ा था इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह झूठा साबित करने के लिए। खुदा का इस पर ऐसा गजब नाजिल हुआ, कहर हुआ कि ये उन्हीं चंद सत्रों में जलील और रुसवा हो गया। कोडू जो इबारत हुसामुल हरमैन से पढ़ के ये टेडी बकरी सुन्नी उलमा को फोन करती है, कालें करती है, उस इबारत के अंदर 1-2 लाइन की इबारत है, कोडू टेडी बकरी वो भी गलत पढ़ती है, उसी के अंदर ये जलीलो रुसवा हो जाती है। इस वीडियो के अंदर भी ये जलीलो रुसवा हुई है, मैं फिर आगे बयान करता हूं। ये चंद सत्रों पर इस टेडी बकरी की इतनी जिल्लत है, खुदा की कसम, ये अगर पूरी हुसामुल हरमैन पर गुफ्तगू करेगा तो ये मेरा नहीं ख्याल के देवबंदियत को कहीं का रहने दे, ये देवबंदियत को गटर के अंदर गोते लगा कर रहेगा। ये आप मेरी बात नोट कर ले, नहीं तो इस टेडी बकरी को किसी बाड़े के अंदर बंद कर दें, इसी में बेहतरी है, वरना ये जलील और रुसवा कराता रहेगा इसी तरह। ये चंद सत्रों के अंदर इसकी जिल्लत और रुसवाई। उसके बाद ये टेडी बकरी कहती है कि कैमरे के सामने शाह साहब झूठ बोल रहे हैं। ये जुमला भी इसने रटा हुआ है, बार बार ये कहते हैं जी कैमरे के सामने फला फला। हालांकि आप इसकी वीडियोस को समात करें जो इसने हवाला जात पेश किए, रद्द शहाब साकिब, अनवार आफ्ताब सदाकत और हुसामुल हरमैन, दीगर हवाला जात, आप असल कुतुब या फकीर की साबिका वीडियोस समात फरमाएं। फकीर ने इसके झूठों को वाज़े कर दिया है कि इबारत के अंदर कुछ लिखा हुआ है
टेढ़ी बकरी कुछ बयान करती है, वो भी कैमरे के सामने दूसरों को कहती है ये टेढ़ी बकरी कि जी कैमरे के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। यार आप अपनी काली दाढ़ी का हया कर ले। आपको शागिर्द कुछ नहीं कहते कि उस्ताजी अकल के अंधे जाहिल नमूने, किताब में तो कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ पेश कर रहे हैं। मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर हम ये बयान कर चुके हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, अनवारे आफ्ताब सदाकत का हवाला गलत पेश करते हैं, रद्द शहाब साकिब का हवाला आप गलत पेश करते हैं। आपको शागिर्द कुछ नहीं कहते, आपके चाहने वाले कुछ नहीं कहते। जाहिल नमूना, तो थोड़ी सी तवज्जो कर। अगर खोपड़ी शरीफ के अंदर अकल शरीफ नाम की कोई चीज है तो किताबें जरा सामने रख, आगे पीछे देख, वहां पर क्या लिखा हुआ है। कैमरे के सामने तू झूठ बोलता है, थोक के हिसाब से झूठ बोलता है। इन तेरे झूठों पर फकीर तुम्हें एक अलग वीडियो के अंदर चैलेंज कर चुका है। इतना ढीठ इंसान यार, शर्म हया नाम की कोई चीज होती है, आपके अंदर रत्ती भर भी गैरत नहीं है, शर्म भी नहीं आती आपको। मैं शागिर्दों से कहूंगा कि उस्ताजी को किताबों की हवा लगवाएं। ये उर्दू की किताबें हैं, इसके सामने खोल के रखें कि उस्ताजी ये इबारत उर्दू की है। और कोडू साहब के शागिर्दों, अपने इस जाहिल नमूने उस्ताजी को लफ्ज के तलफ्फुज की मश्क करवाएं। बार बार पढ़ता है लफज लफज। लफज क्या चीज होती है? ये कौन सी लुगत है? ये देवबंदियत का तर्जुमान है, ठेकेदार बना हुआ है। आपसे पहले भी कोडो टेढ़ी बकरी, आपसे पहले भी एक शख्स था जो अपने आप को इमामुल मुनाजिरीन कहलवाना पसंद करता था। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने उस इमामुल मुनाजिरीन का ऐसा ऑपरेशन किया कि 2-2.5 साल हो गए, वो सामने नहीं आया। फिर इंशाअल्लाह आपका अशर भी ऐसा होगा, आप याद रखेंगे आपका पाला किससे बड़ा है। बार बार पढ़ता है लफज लफज। भाई लफ्ज का तलफ्फुज तो ठीक कर ले। इमाम आले सुन्नत रहमहुल्लाह की गलतियां बाद में निकालना। और फिर कोडू साहब कहते हैं 2 माह से फकीर इनको तंग कर रहा है जी, ये मामला उछाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने भी 2 माह से आपका रद्द किया हुआ है। 2 माह से फकीर आपके तहक्कुम में है, आपको पता भी है, आप वीडियो सुनते भी हैं, फिर कहते हैं जी मैंने वीडियो नहीं सुनी। हमें सब पता है, कैमरे के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। कोडू साहब कहते हैं कि हमने इरफान शाह साहब को कॉल की थी और इसके अलावा भी हमने उलमा को कॉलें की, अपलोड नहीं की। ये क्यों नहीं की अपलोड? ये जो अब शाह साहब वाली अपलोड की है बिल्कुल थोड़ी सी की है। इबारत इसने रटी हुई थी हुसामुल हरमैन की। इब्तदाई हिस्सा इसका कोडू साहब ने यहां पर लगाया, आगे हिस्सा इसने नहीं लगाया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आगे इसकी जिल्लत और रुसवाई थी। ये कद काज़बा को कद काज़िबा पढ़ता रहा है। इसने जिल्लत रुसवाई के खौफ से इब्तदाई हिस्सा उस ऑडियो का अपनी वीडियो में चलाया जहां इसकी जिल्लत और रुसवाई थी। भाई जवान बन, मर्द बन, ये पूरी ऑडियो लगा यहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? इबारत तूने रटी हो और 2-3 जुमले पहले वाले पढ़े। 15 ऑडियोज तुमने अपलोड की हैं, वहां इबारत पूरी पढ़ते हो, यहां इबारत तुमने पूरी नहीं पढ़ी। ये भी कैमरे के सामने झूठ बोला तुमने यार। इसके बाद कोडू साहब कहते हैं मुशाहिद शाह साहब ने कहा कि जी किताब का मुतालबा, और इरफान शाह साहब कह रहे हैं किताब का मुतालबा। ये कहते हैं जी मैंने किताब का मुतालबा वैसे नहीं किया, ये मेरे पास रद्द शहाब साकिब है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 102 पे लिखा हुआ है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ने एक एक लफ्ज इनकी किताबों से लिया है। ये कोडू साहब कहते हैं हमने इस टेढ़ी बकरी को कहा था ये रद्द शहाब साकिब है, मेरे पास सफ़ा नंबर 102 है। हमने इसे यह कहा था कि यह किताब जवाब है
शहाब साकिब मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी, ये उस किताब का जवाब है। जिस तरह टांडवी ने गुफ्तगू की है, मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह ने उसी अंदाज में जवाब दिया। जो सफ़ा नंबर 102 की इबारत पेश कर रहा है, फकीर ने अलग तौर पे इस टेढ़ी बकरी को चैलेंज किया हुआ है कि इस मकाम पर फतवा का लफ्ज दिखलाए कि मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह ने लिखा हो कि हुसामुल हरमैन वाला जो फतवा है, इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ने गंगोई का फतवा जिस जानिब इशारा किया, यहां पर उस फतवे का जिक्र हो। यहां पर तो इबारात की बात हो रही है, तहजीरुन नास हिफ्जुल ईमान बराहीन कातिया, इन इबारात की बात है, फतवे का तो जिक्र ही नहीं है। ये इबारात हिफ्जुल ईमान बराहीन कातिया तहजीरुन नास इस हवाला से फरमा रहे हैं। जहां तक गंगोई के फतवे का जिक्र है तो कोडू साहब एक पूरी फसल है, सफ़ा नंबर 247, ये जवाब फसल सालिस, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी फसल यहां से इस फतवे का जिक्र कर रहे हैं मौलाना अजमल रहमतुल्लाह। जिस मकाम से तो ये बार बार इबारत पढ़ता है, हम तुम्हें जवाब दे चुके, चैलेंज कर चुके हैं कि इस मकाम पर फतवे का लफ्ज हमें दिखाओ। जैसे तुमने सवाल एतराज गलत किया, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने हुसामुल हरमैन के अंदर ये नहीं कहा कि मैंने ये फतवा गंगोई की किसी किताब से लिया है। जैसे तुम्हारा ये एतराज जिहालत पर, हमाकत पर मबनी है, वैसे अपनी इस हमाकत जिहालत को दुरुस्त साबित करने के लिए ये इबारत पेश करना भी जिहालत और हमाकत है। शर्म नहीं आती? कैमरे के सामने झूठ बोलते हो। शागिर्दों, जरा आप मेहरबानी करें इस कोडू टेढ़ी बकरी पर। ये कोडू साहब के शागिर्दों से मैं कह रहा हूं कि ये सफ़ा नंबर 102 इसके सामने रखे और इस टेढ़ी बकरी से कहे कि उस्ताद जी जरा इस मकाम से फतवे का लफ्ज तो दिखा दें। आप इबारत बार बार पेश करते हैं, फतवे का लफ्ज तो दिखाएं। शागिर्दो, अल्लाह ने तुम्हें अगर अकल दी है तो इस टेढ़ी बकरी के सामने ये सफ़ा खोल के रखें कि उस्ताद जी बड़ी जिल्लत और रुसवाई हो रही है, देवबंद धर्म की, देवबंदियों की बड़ी जिल्लत और रुसवाई हो रही है। आप बार बार यह हवाला पेश करते हैं, यहां पर फतवे का लफ्ज किस मकाम पर है, किस जगह है? सफ़ा नंबर 102 बार बार ये कह रहा था कि रद्द शहाब साकिब, रद्द शहाब साकिब। झूठ तू बोल रहा है कैमरे के सामने, किताबों के होते हुए। हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। ये जवाब हो गया। बार बार कह रहा था कि रद्द शहाब साकिब, मैंने किताब का मुतालबा क्यों किया? या तो तू साबित कर, ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, अपने बाप का बन एक बाप का, वगरना आपके 2 अब्बे हैं। फकीर का वो चैलेंज है और 12 दिन गुजर चुके हैं, अभी 18 दिन है तेरे पास। फकीर का चैलेंज अपनी जगह, 1 महीने का टाइम दिया हुआ था आपको कि 1 महीने के अंदर अंदर तरदीद कर, आपकी कुतुब की रोशनी में, आपके उसूल व ज़वाबित की रोशनी में आपको टाइम दिया था। खैर फकीर अब ये चैलेंज करने लगा है तुम्हें, अगर 1 अब्बे के हो, हलाली हो, बाकी गैरत जुर्रत नाम की कुछ चीज है तेरे अंदर, तो ये साबित करो कि रशीद अहमद गंगोई साहब के सारे फतवे किताबों के अंदर मौजूद हैं। साबित करो तुम। फकीर ने हवाला पेश किया था बाकियात फतावा रशीदिया के गंगोई साहब के हजारों फतावा जात, 14-15 जिल्दें बनती थी, देवबंदियों ने जाया कर दी, इसलिए कि उनमें इतनी अहमियत, उन फतावा जात में इतनी जान नहीं थी, सारी खच्चें थी गंगोई साहब की कि इन्होंने जाया कर दी। ये तो तुम्हारे अपने घर के बंदे कहते हैं गंगोई के फतवे जाया कर दिए गए, हजारों फतवे जाया कर दिए गए, तो तुमने ये कुफर वाला फतवा कैसे उसकी किताब में शामिल करना था? या तो तू साबित कर कि गंगोई के सारे फतवे किताबों के अंदर हैं, फिर हमसे बात करना। अगर साबित नहीं कर सकते, हम साबित कर देते हैं कि हजारों फतवे, तुम्हारे मौलवी कहते हैं
کہ دیوبندیوں نے ضائع کیے، 14-15 جلدیں بنتی ہیں، انہیں ضائع کر دیا۔ جب وہ ضائع ہو سکتی ہیں تو فتویٰ وقوع کذب، یہ گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے دکھانے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت اور تمہاری حماقت ہے۔ اس کے بعد کوڈو صاحب نے المعتمد المستند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے شاہ صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ گنگوئی صاحب 3 سال زندہ رہا، اس کتاب کی اشاعت کے بعد گونگا بنا رہا، جواب نہیں دیا۔ فقیر بھی اپنی متعدد ویڈیوز کے اندر یہ بات کر چکا ہے۔ کوڈو کے مطابق رشید گنگوئی 22-23 سال زندہ رہا، اس فتویٰ کے بعد گونگا بنا رہا، جواب اس نے نہیں دیا، رد نہیں کیا۔ ہم نے ایک قاعدہ ضابطہ فقہی اصول پیش کیا تھا کہ جس مقام پر جواب کی ضرورت ہو، دیوبندی کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا، فقہ کی کتب کے اندر بھی یہ ضابطہ قاعدہ موجود ہے، وہاں سکوت، خاموشی اختیار کر لینا، یہ بیان کے قائم مقام ہوتا ہے، رضا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا تھا، کوڈو ٹیڈی بکری اس کا جواب پیش نہیں کر سکی، یہ مرتا مر جائے گا، یہ کوڈو سے مزید کوڈو ہو جائے گا، اپنے 2 بے تسلیم کر لے گا، یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس نے کیا کہا شاہ صاحب کی بات کے جواب میں؟ جی گنگوئی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر تردید کر دی تھی۔ ہم اس ٹیڈی بکری سے کب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ رشید گنگوئی صاحب کا وہ تردید نامہ کہاں ہے؟ جس اصول کی بنا پر تم ہم سے فتویٰ وقوع کذب کا مطالبہ گنگوئی صاحب کی کتاب کے حوالہ سے کر رہے ہو، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی تمہاری بات کو تمہارے منہ پہ مارتے ہوئے ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے گنگوئی صاحب کا تردید نامہ پیش کر دو۔ اگر اتنے ترم خواہ ہو، اتنے جرأت والے بن رہے ہو، مرد بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سارا جھگڑا ہی ختم کر دو۔ 10-15 ویڈیوز بنا چکے ہو، بقول تمہارے 40-50 کالیں کر چکے ہو، سنی علماء کو اپلوڈ اگرچہ آپ نے 15-16 کی ہیں، اپنی ذلت اور رسوائی کے ڈر سے بقیہ آڈیوز اپلوڈ نہیں کی۔ یہ جھگڑا ہی ختم کر دو، ایک ویڈیو کے اندر 1 منٹ زیادہ سے زیادہ تردید نامہ، چلیں 5 منٹ کی ویڈیو بنا دیں کہ جی یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر گنگوئی صاحب کا یہ تردید نامہ موجود ہے، آپ ہمت کریں۔ آپ کہتے ہیں شاہ صاحب کو یہ دعوت مکالمہ ہے، میرا آپ کو دعوت مکالمہ ہے، آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا وقت برباد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر ایک تردید نامہ گنگوئی صاحب کا اس فتویٰ وقوع کذب کے حوالہ سے یہ پیش کر دیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہوئے، ہم سے اپنی لتریشن کرواتے ہوئے، اگر اتنا تو پھنے خواہ ہے، اتنا ترم خواہ ہے، تو یہ تردید نامہ پیش کیوں نہیں کر دیتا؟ ہمیں پتہ ہے کوڈو ٹیڈی بکری، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کتنا بڑا تو ترم خواہ ہے۔ کہتا ہے کہ جی گنگوئی صاحب کا تردید نامہ ہم نے پیش کر دیا تھا۔ بھی کہاں پیش کیا ہے تم نے؟ کس ویڈیو کے اندر پیش کیا ہے؟ کس کتاب کے اندر گنگوئی صاحب کی کتاب کے اندر یہ تردید نامہ موجود ہے؟ حوالہ پیش کر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کوڈو صاحب کہتے ہیں کہ جی حسام الحرمین اور المعتمد المستند کے اندر جو عبارات امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، فتویٰ وقوع کذب، اس میں جو عبارت ہے حرف بحرف، یہ اب مطالبہ دیکھیں اب ڈنڈی کیسی مارتا ہے۔ ہم نے اس ٹیڈی بکری کے سامنے اس کی جو عقائد کی متفق علیہ کتاب ہے، یہ مہند، اس میں تھانوی کی عبارت ہم نے اس کے سامنے رکھی تھی کہ
अम्बेडवी ने जो थानवी का दिफा किया है इस गुस्ताखाना कुफरिया इबारत का, हमें इस किताब से हर्फ बहर्फ साबित करके दे। इस किताब को भी तुम कुरान और हदीस से पहले पेश करते हो। हमें कह रहा था कि ला रैब फी, ये तुम्हारे नजदीक कुरान और हदीस से पहले ये दर्जा रखती है। हवाला जात फकीर पेश भी कर चुका है और आइंदा भी जिम्मेदार है। इसमें थानवी की जो इबारत है, यहां पर तुम यही कहोगे कि मफहूम, अगरचे यहां पर थानवी की इबारत का मफहूम भी इसने नकल नहीं किया। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जो इबारात लिखी हैं, हमने पहले कहा था कि ये मफहूम एक ही बनता है, इसीलिए इसको ये डंडी मारनी पड़ी, मकर से काम लेना पड़ा कि हर्फ ब हर्फ इबारात यहां हमें दिखा दी जाए। ये इस बात का जवाब हो गया। इसके बाद ये टेढ़ी बकरी कहती है कि किस किताब के अंदर है कि अगर कोई तरदीद ना करे तो वो बात साबित हो जाती है। हमने इस टेढ़ी बकरी को ये मुताले बरेलवियत, मैं यहां पर इशारा कर देता हूं, 2-3 हवाला जात इस किताब से पेश किए थे कि डॉक्टर खालिद महमूद साहब कहते हैं खलील अम्बेडवी ने अपनी सफाई पेश की और इसने जुर्रत वाला करार दिया और यह कहा कि सफाई पेश करना ही इस बात के लिए काफी था कि ये तमाम इल्जामात हैं। ये फकीर ने हवाला जात पेश किए थे इस किताब से। और दूसरा हवाला पेश किया था ईमानी दस्तावेज बजवाब तहकीकी दस्तावेज मौलवी मेहर मोहम्मद। इसमें मौलवी इलियास घुमन साहब की तकरीर भी मौजूद है। ये कोडू ग्रुप के सरपरस्त हैं। कोडू ग्रुप इसी घुमन ग्रुप की एक शाख है। घुमन साहब की तकरीर है इस किताब के अंदर। सफ़ा नंबर 222 हवाला पेश किया था फकीर ने। इन कुतुब की रोशनी में हम आपको कहते हैं कि गंगोई साहब की तरदीद ना आना, अगरचे उसे पता था, उसने फतवा लिखा है, आपके बकौल 22-23 साल अगर आपकी जिहालत को सामने रखें, 1301 सन हिजरी फतवा वकूए कज़िब की तारीख, वो जो तखलीक मुआर उसे अगर तस्लीम कर लें, हमारे बकौल तो 15 साल ये गूंगा बना रहा। ये कैसा तर्जुमान है, उनका दिफा करने वाला है, मजीद उनको फंसा देता है। उनकी गर्दन पहले ही लानत और कुफर के तौक से नहीं निकलती, कोडू मजीद धक्का दे देता है कि हजरत आप यहीं ठीक है। 22-23 साल का अरसा उसे पता था, उसने तरदीद नहीं की। इन उसूल ज़वाबित की रोशनी में, इन कुतुब की रोशनी में उसकी तरदीद नहीं है। लिहाजा ये आपका धोखा मकर फरेब है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जी आपको डांसर लिखा गया, फुला फुला लिखा गया। ये किताब आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें आपको जिंदीक लिखा गया, फकड़बाज लिखा गया, आपको इसमें मुबग़िज़े सहाबा लिखा गया। आपकी तरदीद तो नहीं है ये सवाला से। इन किताबों को सामने रखें और इसे सामने रखें, नतीजा आप निकाल लें। और ये रिसाला तो आपका है, आपके ग्रुप का है, महमूद सफदर उकाड़वी, फतह यजीदियत का दिलकश नजारा। बड़ी ठंडक पहुंचाता होगा आपको ये रिसाला। इसमें आपके 2 अब्बे लिखे गए हैं, आपकी तरदीद नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, मेरा चैलेंज आपको 1 महीने का ये वक्त मैंने आपको दिया हुआ है, लिहाजा ये ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलने देंगे। साजिद कोडू साहब इसके बाद कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जिंदगी में मौलाना चांदपुरी साहब ने तरदीद कर दी थी। अक्ल के अंधे इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जिंदगी में तरदीद करना ना करना ये माने नहीं रखता। हम कहते हैं गंगोई साहब ने अपनी जिंदगी में तरदीद की हो, दिखाओ, या चांदपुरी मौलवी हुसैन अहमद टांडवी खलील अम्बेडवी ने गंगोई की जिंदगी में हयात में इसकी तरदीद की हो, ये हवाला में पेश करो। आसानी के लिए गंगोई का तरदीद नामा चले एक जानिब रहने दे। आप गंगोई की जिंदगी में चांदपुरी ने तरदीद की हो, गंगोई की जिंदगी में हुसैन अहमद टांडवी ने तरदीद की हो, गंगोई की जिंदगी के अंदर मौलवी खलील अम्बेडवी ने तरदीद की हो, हमें इनका तरदीद नामा गंगोई की जिंदगी में दिखाओ। मैं तो कब का कह रहा हूं कि अगर ये हजरात गंगोई के हयात में तरदीद कर देते तो गंगोई साहब इनको बुला के
कान पकड़वाते और इनकी टकोर करते कि नादानो, सारी जिंदगी जिस मकाम पर पहुंचने के लिए मैं तगो-दो करता रहा, आज तुमने मेरी इस मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं तो कब का कह रहा हूं भाई। चांदपुरी साहब आप कहते हैं 1326 में चांदपुरी साहब ने तरदीद की है, आप कहते हैं 1329 में मुहन्नद लिखी गई, उसके अंदर इसे जाली फतवा कहा गया। आप कहते हैं 1327 में अशाब साकिब हुसैन अहमद टांडवी ने लिखी है। आम रज़ा खान की जिंदगी में 1327 हिजरी के अंदर ही शाब साकिब शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मदनी साहब ने लिखी और उसके अंदर इस फतवे को जाली कहा। उसके बाद अल मुहन्नद 1329 हिजरी आम रज़ा खान की जिंदगी में तमाम उलमा देवबंद की इत्तेफाकी दस्तावेज है, उसके अंदर इस फतवे को जाली लिखा, इससे ऐलान बरात किया। मौलाना मुर्तज़ा चांदपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1326 हिजरी से लेकर आम रज़ा खान की वफात तक इस फतवे को जाली झूठा लिखता रहा। मौलाना मंजूर नोमानी साहब उसके बाद इसे जाली, 100 साल से हमारे अकाबिर चीख रहे कि जाली है, जाली है, जाली है। गंगोई कब मरा? 1323 में। 4-5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद तुम्हें याद आया कि यह तो हजरत पर बोहतान है। कोडू साहब आप कहते हैं तरदीद कर दी थी। एक और बात यहां पर करने लगा हूं, आप पर यह कर्ज रहेगी मेरी बात। चांदपुरी कहता है कि हजरत ने तरदीद कर दी थी। रशीद गंगोई का पहला मुरीद है खलील बिठवी शागिर्द। इतना एतमाद कि अपनी बराहीन कातिया इसके नाम पर इसने छपवाई। अशहाब साकिब ये पहले पहल लिखी गई गंगोई साहब की हिमायत में। इन दोनों बंदों को ये जुर्रत ना हुई दावा करने की कि गंगोई साहब ने तरदीद कर दी थी। तुम्हें किसी फरिश्ते ने आके बताया है या चांदपुरी साहब को बताया या नुमानी साहब को बताया कि हजरत गंगोई ने तरदीद कर दी थी? और बेवकूफ अपनी अकल को हाथ मार, अम्बेठवी हुसैन अहमद टांडवी ये पहले पहल दिफा करने वाले लोग हैं। इन्होंने इतना बड़ा दावा नहीं किया गंगोई की तरदीद का। आज 100 साल के बाद कोडू टेढ़ी बकरी कहती है कि हजरत ने तरदीद कर दी थी। गंगोई के मरने के बाद चांदपुरी साहब कहते हैं हजरत ने तरदीद कर दी थी, मैंने खत लिखा था, हजरत ने मुझे जवाब लिखा। नुमानी साहब उन्होंने इससे भी आगे जो है वो बड़े, उन्होंने कहा कि जी वो तहरीर मौलाना अहमद रजा साहब को भी दिखाई गई। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इतने बड़े झूठ यार, कम अज कम अपनी जुबान तो कर ले। ये तुम कह रहे हो कि 1326, 1327, 1329 ये इन्होंने जाली कहा। हम कहते हैं 1323 से पहले जरा साबित करो कि गंगोई का ये फतवा नहीं है। गंगोई या किसी शागिर्द का 1323 से पहले, मरने से पहले। इसीलिए चांदपुरी साहब को ये झूठ बोलना पड़ा कि 1323 आखिरी अय्याम में मैंने खत लिखा। भाई वो तो उसके पागल होने का साल है। वो अपने मुरीदीन को, अपने मोतकीदीन को नहीं पहचानता था। वो अंधा हो गया था, उसकी निगाह चली गई थी। उसने कैसे चांदपुरी साहब की तहरीर पढ़ के फिर अपने हाथ से तहरीर लिख के जनाबे वाला वो रवाना कर दी और फिर वो मौलाना अहमद रजा साहब को दिखाई गई। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है यार। इसके बाद कोडू साहब कहते हैं कि अल-मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने अल्लाह के झूठा होने का खुद इकरार किया है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि जी इम्कान कज़िब, वुक़ूए कज़िब और खुल्फ़े वईद दोनों एक ही चीज है। असल में इसने बार बार हवाला पेश किया अनवार आफ्ताब सदाकत का। हम इसकी लतरेशन कर चुके हैं कि इसने यहाँ 2 नंबरी से काम लिया, धोखे से काम लिया। एक वहाबी की इबारत मौलाना काजी फजल अहमद साहब ने नकल की है। इसने उठाकर वो काजी फजल अहमद साहब का अकीदा बना दिया और कहा कि जी ये देखे इम्कान कज़िब, वुक़ूए कज़िब, खुल्फ़े वईद एक ही चीज के नाम है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। फकीर इस पर भी चैलेंज कर चुका है इस टेढ़ी बकरी को। अगर ये अपने एक बाब का है, हलाली है, इसमें दम खम है, तो ये मौलाना काजी फजल अहमद साहब का अकीदा साबित करे। उनका अकीदा एक सफ़ा के बाद आगे है कि खुल्फ़े वईद और इम्कान कज़िब ये एक चीज नहीं है। और जो बाज गैर मुहक्किकीन अशाइरा खुल्फ़े वईद के कायल हैं, उस खुल्फ़े वईद को इम्कान कज़िब से कोई ताल्लुक नहीं है। यह हम बयान कर चुके हैं और इसको चैलेंज है। इतने बड़े झूठ दूसरों को ताना देता है, कैमरे के सामने झूठ बोलता है।
शर्म भी नहीं आती। ये मुख्तसर फ़कीर का तबसरा है इसकी गुफ्तगू पर, इसकी बातों पर। अगर कोई इसकी और वीडियो सामने आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़कीर हाजिर है। ये समझता है कि मैं शायद देवबंदियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये देवबंदियत को जलील और रुसवा करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अब इस हवाला से हमारे साथ राब्ते में हैं और राब्ता कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है अनकरीब अच्छी खबरें आएंगी इस हवाला से। जो इसके झूठ हमने लोगों के सामने रखे, इसकी बुनियाद ही झूठ पर है कि मुतालबा करता है उसामुल हरमैन के अंदर जिस फतवे का जिक्र है ये किस किताब के अंदर है। भाई इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने तो किसी किताब का हवाला नहीं दिया, आपने ये फरमाया था कि ये फतवा इसकी कापी मेरे पास मौजूद है। और बकौल चांदपुरी साहब के इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह फतवा की कापी देखने की दावत भी देते रहे और किराया देने की भी ऑफर की, लेकिन जैसे इसके अकाबिरीन ढीठ थे, हर धर्म थे, वैसे ये भी हर धर्म और ढीठ है। चांदपुरी साहब फतवा की कापी देखने के लिए बरेली शरीफ नहीं गए, इसी तरह ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा।